ویلکم بیک نشریات پیغام رمضان میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سیگمنٹ سے بھی متعارف کرا رہے ہیں تو جناب 5 بجے کے بعد جب ڈیلی آپ کی ہماری ملاقات ہوگی تو ہم آپ کے لیے ایک لے کر آئے ہیں بڑا زبردست اور شاندار سا سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے تاکہ جو جنرل نالج ہے, ہمارا جو دینی نالج ہے, اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو سکے. بڑے آسان سے سوالات ہوں گے جو کہ ہم 5 بجے کوئز رکھیں گے اور ہمارے مہمان ہمیں ڈیلی جوائن کریں گے. سیگمنٹس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ فرسٹ سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات ہیں میرے پاس, تو میں باری باری کر کے اپنی ٹیم سے پوچھوں گی, لیکن ہمیں جوائن کس نے کی ہے ذرا ہم یہ بتا دیتے ہیں. ٹیم اے یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایزا نیم, جن کا تعلق ہے لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی سے. ٹیم 2 میں ہیں جناب محمد علی رائس کالج آف اکاؤنٹنسی سے, اور ٹیم 3 میں موجود ہیں ربینہ حفیظ پنجاب یونیورسٹی سے. بہت آسان ہے, کوئز مقابلہ ہونے والا ہے. پہلے راؤنڈ میں 7 سوالات پوچھوں گی سارے کنٹیسٹنٹ سے. راؤنڈ 2 کا جو مقابلہ ہوگا وہ بزر راؤنڈ ہوگا, یعنی کہ جو پہلے بزر دبائے گا اسی کا جواب درست مانا جائے گا. اور چہرہ دیکھیں نا, لگ رہا بھی ریس لگانے والی ہیں. اور جناب راؤنڈ 3 جو ہوگا وہ ہوگا ٹائم آؤٹ راؤنڈ, یعنی کہ تیسرے سیگمنٹ میں, یعنی کہ تیسرے اس سیگمنٹ کے بعد ہم جا کے وہ اناؤنس کریں گے. سب سے پہلے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میرے تمام ناظرین جو یہ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان جو یہ دیکھ رہے ہیں, آپ سب بھی اس کوئز میں شامل ہیں. شاید آج اس رمضان میں, پیغام رمضان میں پہلی دفعہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں, اپنے نبی کے بارے میں اور اپنے خدا کے بارے میں کچھ جان سکیں. تو ہم سب کے ساتھ رہیے, سوالوں کا جواب دیجیے. اگر آپ گھر بیٹھ کے آپ بھی گیس کریں, ہاں, اور اگر جیت جائیں تو اپنی امی سے جا کے انعام لیجیے, کیونکہ یہاں پہ نبیہا ان کو انعام بانٹیں گے. اچھا بچوں, کوئی نروسنس ہے کسی قسم کی؟ اچھا جی, اگر کہیں پہ آپ کو لگیں کہ سوال میں الجھ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں تو میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر عمر عادل صاحب آپ کو ہنٹ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ وقت نہیں لینا ہے. ٹیم ہے یعنی کہ میں سب سے پہلے ایزا کے پاس چلوں گی. ایزا آپ ریڈی ہیں سوالات کے لیے؟ اچھا جی, پہلا سوال آپ کے لیے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کیا تھا؟ شیطان نے, ابلیس. کون سے نبی علیہ السلام جانوروں اور جنات سے باتیں کیا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. بہت عمدہ. کس پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام. کریکٹ. اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کریکٹ. ابلیس اللہ کی کن مخلوق میں سے تھا؟ جنات. کریکٹ. کس نبی کی والدہ ان کو تاکید کرتی تھی کہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے دن فقیر ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کریکٹ. مسلمانوں کے علاوہ اور کون سی قوم ہے جس کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ عیسائی. کریکٹ. اوکے جی ڈاکٹر صاحب. بہت عمدہ. دیکھ لیجئے کہ ایزا نے ذرا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا اور بار اوپر سیٹ کر دیا. محمد علی جی سر, مردانہ علاج رکھیں. 2 خواتین کے درمیان کھڑے ہو کے ویسے ہی ذرا بندہ پھس ہو جاتا ہے. اچھا مشکل ہو جائے گی اگر ٹائی ہوگی ہماری ٹیم کے لیے, لیکن جی. اچھا جی, آپ سے بہت آسان سوال ہے اور جلدی جلدی جواب دینا ہے. سب سے پہلے یہ فرمائیے, روزے اسلام میں کب فرض ہوئے؟ روزے اسلام میں کب فرض ہوئے؟ جی, کون سا سنہ ہجری میں ہوئے؟ 2 ہجری. ویری گڈ. یہ بتائیے کہ کس مہینے میں روزے اسلام میں مسلمانوں پہ فرض ہوئے؟ کس مہینے کے اندر یہ حکم آیا کہ روزے رکھیں گے مسلمان؟ رمضان المبارک. نہیں, رکھیں گے تو مسلمان, لیکن یہ حکم کس مہینے میں آیا؟ کوئی ہنٹ؟ ہنٹ بھائی ظاہر ہے کہ اگر اگلا مہینہ رمضان ہے تو اس سے پہلے مہینے میں آیا ہوگا, شعبان میں. لیکن نمبر ذرا کاٹ لیں اس کا. نمبر 3 جی, سب سے پہلے اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے کس ملک کی طرف ہجرت کی؟ ہجرت حبشہ کی طرف. ویری گڈ. جب ہجرت حبشہ ہوئی اس وقت حبشہ کا بادشاہ کون تھا جس کے دربار میں نجاشی. ویری گڈ. نجاشی کا اپنا مذہب کیا تھا؟ عیسائی. یہ بتائیے نجاشی کے دربار کے اندر کون سی قرآنی سورت کی تلاوت کی گئی؟ سورہ مریم. بہت عمدہ. اچھا یہ بتائیے کہ اسلام کے آنے سے قبل اور فتح مکہ سے قبل خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے اطراف میں کتنے بت موجود؟ 360. ان 360 میں سے محمد علی کسی 3 کا نام بتا دو. 3 کا نام ہمارا کیا خیال تھا سارے میں نے 5ویں اسلامیت کے سوال کر لات, منات, حبل, نائلہ, یہ باتیں میں نے باقی 4تھی میں پڑھی تھی. اگلا سوال آپ سے یہ سب بتا دیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صاحبزادی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی؟ Oh my God, you can't do this. کوئی ہنٹ اس میں؟ حضرت عمر کی کون سی صاحبزادی تھیں جو کہ ام المومنین اور ازواج مطہرہ کے درجے پہ پہنچی؟ Can I help? Yes.
حضرت عائشہ हजरत हफ्सा जी, हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी, बिल्कुल। अगला आपका सवाल। चलें जी, सवालात हैं हमारी अगली मेहमान रुबीना के लिए। रेडी हैं आप जनाब? अच्छा जी, पहला सवाल आपके लिए है कि कायद आजम किस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग का असलहा खाना कहा करते थे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के तख्त पर बैठने के वक्त उनकी उम्र क्या थी? 13 वर्ष। करेक्ट। करारदादे पाकिस्तान का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? मौलाना जफर अली खान ने। करेक्ट। पाकिस्तान के सरतरीन मकाम का नाम बताइएगा। सकरदू। वेरी गुड। पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का नाम किस चीज पर रखा हज़रत गया? अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अज़ब के नाम। वेरी गुड। यहाँ रुक जाइए जी। ये सवाल तो लगते हैं कि उनको पहले दिए गए थे, जिन्होंने याद किए हैं। कुछ फिलबदी सवाल हो जाए अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल हो गए, अभी दो फिक्र- सवाल रह गए बाकी। अभी फिक्र, 2 सवालों में डॉक्टर साहब आसानी से नहीं जाने दे दूध रहे। का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ओह माय गॉड। ये बताइए कि सरकार दो आलम की रजाई बहन का नाम मुबारक क्या था? यानी कि रजाई बहन का मतलब आप समझती जी हैं? जी मैं समझती हूँ। उनकी दाया के साथ दूध शरीक बहन का जी, नाम जी। बताइए। मुझे उनकी बहन का नाम माइंड में आ रहा है, मगर उनके शोहर का नाम हजरत हारिस था। बहुत उम्दा बात है, ठीक है, आपने हारिस शीमा बता दिया। बहन थी। शीमा, Correct, इसको correct भी कर ले, कर ले, बिल्कुल, जी, हाँ। उनके वालिद का नाम आपने Correct, बताया, correct, शोहर का नहीं, हजरत वालिद। हलीमा साहब। बिल्कुल, जी, बहुत ओके उम्दा। जी। अब एक बात बता दीजिए, जी। जिस दाया को ये एजाज हुआ कि महबूब किबरिया उसकी गोद में आया और बचपन में उसको उसने खिलाया और जी। पढ़ाया और ख्याल किया, उस दाया का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? दाया तो हजरत हलीमा सादिया थी और अरब कबीले का ज्यादा आइडिया नहीं है। बेटा अगर नाम सादिया था तो बनु जी। साउद बनु साद की खातून बनु होंगी ना? साद की। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जी। पता चल गया ना? अच्छा किया इन्होंने, लेकिन अभी नताइज हम अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि 2 राउंड राउंड रखते और हैं, हमारे बिल्कुल, जी, बाकी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और वो 2 राउंड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले होंगे क्योंकि बजर राउंड होगा इससे अगला और टाइम आउट राउंड होगा। नूर कैसे लगे बच्चे बहुत हमारे बहुत आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी जल्दी और स्पेशली हर आप भी बहुत अच्छे, लेकिन उसने तो लग रहा था जैसे फौरन ही कोई उससे पहले ही सवाल से पहले ही जवाब आ गया। अच्छा नूर जी बताइए, सवाल पूछने वाला कैसा लगा? वो तो सर आप इनको गूगल कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब भाई इसे मेरी गूगल। बच्ची है तो मैं तो उसके साथ वाकई मोहब्बत और लाड का रिश्ता, इसलिए आपने तो जो बुरा मना रहे हैं ना, मनाते रहें। नहीं, अरे नहीं, मोहब्बत 2 मर्द और औरत के दरमियान बड़ी बिल्कुल। बड़ी पाकीज़ा भी हो सकती बिल्कुल, है, ऐसे। हर वक्त इधर उधर न करें। उस्ताद और शागिर्द का। अच्छा अरे नहीं, डॉक्टर साहब, बच्ची नहीं। बजर राउंड की तरफ जी। जो है हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी, हमें चलिए, पढ़ना चलिए। चाहिए, आगे बिल्कुल। पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग चलिए, होगा। तो भाई मोहतात रहिएगा, सवालात पूछते हैं। बजर जरा पहले हमें चेक बताइए। कर ली भाई, वाह। ठीक और है। तेजी से बजाने हैं, तेजी से बजाने हैं कि चलिए। जिसको सवाल किया। बिस्मिल्लाह, शुरू आईने कीजिए। पाकिस्तान किस दौरे अभी सवाल तो सवाल मुकम्मल हुआ, जवाब क्या है? सवाल तो मुकम्मल हुआ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ था। सही है, जवाब सही ठीक हो है। गया। अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल हाँ, जी जी, आपका नहीं? डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं सवाल? मैं सवाल कर रहा हूँ जी अपना? जी आप करें। आइए सर, अब तीनों अपने बजर पे तैयार रहें और ये देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ आ गई आपको मेरी बात की? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। कायद आपने मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत उम्दा। अगला सवाल। पाकिस्तान एटमी मुल्क कब बना? आई ये थिंक confusion हो गया। इजा टुडे माय फर्स्ट। बजर मेरे ख्याल में रुबीना ने बजाया पहले सबसे बजाया। पहले, रुबीना। 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत में 28 मई 1998। अच्छा, अगला सवाल मैं करूं? इनका जवाब सही है बिल्कुल। ये बताइए कि पिछले साल पाकिस्तान ने अक़लियतों का ख्याल करते हुए और बैनुल मज़ाहिब हमंगी का मिसाल देते हुए कौन सा गुरुद्वारा, फरमाइए रुबीना बताइए कौन सा गुरुद्वारे का इजरा किया गया? यही सवाल मैं बाकियों से करता हूँ। आइए बताइए। ईजा करतारपुरा। वेरी अच्छा अच्छा जी, शेर खुदा का लक़ब किसको और किसने पहले बता? रुबीना ने बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक बात और पूछनी है। ये बताइए कि सफ़र मेराज पे जो ज़मीनी सफ़र तय किया गया वो तो उसके लिए बुर्राक आया। ये बताइए कि सिदरतुल मुंतहा के बाद तो कोई ज़ीरू जा नहीं सकता था। सिदरतुल मुंतहा से आगे मेरे सरकार की सवारी क्या थी? हाँ। जो 7वें आसमान से आगे लेके गई, उसका नाम बता दीजिए। हिंट। कोई हेल्प चाहिए? नूर खड़ी है। यस मैम। नहीं पहले भी मैं गलत बोल दिया था, मैं अब कुछ भी नहीं बोल रही। कोई बात नहीं। उस सवारी का नाम था, एक ज़मरद का तख्त था जिसका नाम रफ था। ये याद रखिएगा कि रफ था, उससे पहले बुर्राक था। अगला सवाल।
अगला सवाल जनाब बताएगा कि अल्लाह के रसूल ने कौन से सहाबी को दुआ करके मांगा था अपने लिए? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अगला सवाल मैं आप लोगों से कर सकता हूँ? ये फरमाइए कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी हमशीरा को कत्ल करने का इरादा किया था, उनका नाम बताइए। वाह वाह, सबसे हज़रत पहले फातिमा बिनते खताब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा बिनते खताब रजी अल्लाह वाह, ताला क्या उम्दा और क्या दलेर औरत थी कि कुरान शरीफ पढ़ रही थी, ऊपर से भाई जिसका गैज़ो गज़ब दुनिया में मशहूर था, हजरत उमर वो कि उनको देख के शैतान रास्ता बदल लेता था कि मैं इनके रास्ते से हट जाऊं, कुर्बान जाऊं पे। तो जब बहन ने कुरान पढ़ा तो उन्होंने कहा ये क्या पढ़ रही हो? गरेबान पकड़ लिया तो कहने लगी उमर मैं भी बिनते खत्ताब हूं, अगर तुम इब्ने खत्ताब हो और कर लो जो मर्जी करना है, मेरे जज्बा ईमानी के अंदर और अपने नबी के ऊपर मेरे इत्तेकाद ने हिलना नहीं है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 5 नमाजें फर्ज होने से पहले कितनी नमाजें फर्ज की गई थी? ईज़ा ने फजर और असर हाँ? फजर 5 नमाजें फर्ज होने से पहले अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें फर्ज की थी हम पर? 50 हाँ 50 करेक्ट। अच्छा देखिए, एक मैं बात आपको कहूं, बेटा जल्दबाजी के अंदर सवाल आप गलत सुन सवाल के, हाँ, पहले हाँ, सवाल सुन लीजिए, उस पर बजर बजाएं। ठीक है जी, बजर पे उंगली रखें और फौरन आखिरी लफ्ज़ से बता दीजिए। ठीक है, ये बात याद रहेगी बिल्कुल आपको। मेरे ये भाई लो। लड़कियां जो है ना वो सबकत ले जा रही हैं, आगे बढ़ी हैं। वैसे लड़कियों और खवातीन इनका जमाना है भाई। भाई है भाई। अब अगला सवाल मैं आप लोगों से करूंगा। ये बताइए इसरा और मेराज में फर्क क्या है? इसरा और मेराज में फर्क क्या है? रुबीना। मेराज वो होता है जो सामने बुला कर की जाए, यानी जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अल्लाह के पास गए। नहीं बेटा, मैं थोड़ी सी बात बताऊं, ये बात आप लोग याद रखिए। वो ज़मीनी सफ़र जो बैतुल्लाह शरीफ से बैतुल मक़दस तक सरकार दो आलम ने किया, वो ज़मीनी सफ़र इसरा है। उसके बाद जब ज़मीन से उठ के आसमानों की तरफ गए तो वो मेराज है। याद रखिए, कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इसरा इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहब ये वाला राउंड यहाँ पे खत्म होता है, तीसरा और फाइनल राउंड हमारा बाकी रह जाएगा, जिसके बाद हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि रिजल्ट कौन से हैं। तीसरा राउंड जो होगा वो टाइम आउट राउंड होगा, वो बच्चों के दरमियान होगा। साथ साथ हम शेफ हुमा के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे रेसिपी क्या है। तो ब्रेक पर चलते भाई हैं। शेफ हुमा तो हमारा आसरा है, चीजें सजा के बैठ गई हैं इफ्तार की, बहुत उम्दा। अभी आके मैं पूछूंगा हुमा, और जितनी बुरी मैंने इनसे सवाल पूछते हुए की है ना, उतनी ही बुरी तरकीब पूछते वक्त तुम्हारे साथ कहूंगा। तो मुझे जानते नहीं और आप लोग भी मुझे जानते नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे रंग खुलेंगे, फिक्र मत कीजिए। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। ख़वातीन हज़रात, पैगाम रमज़ान में एक बार आपको फिर खुशामदेद कहते हैं, और ये खुशामदेद होता है, दीद नहीं होता। ये दीद से नहीं है, आमद से है, यानी कि दोबारा आपकी आमद हमें दिल को खुश कर रही है, तो खुशामदेद आपको कहते हैं। और इससे पहले जाने से पहले हम लोग 2 राउंड कर चुके हैं अपने क्विज के, जिसमें यकीनन आपके भी दिमाग को थोड़ा सा हिलाया गया होगा। अगर 2 बातें भी नहीं पता चली हैं तो समझिए कि आज आप कुछ लेके उठे हैं। हमारे पास अब एक टीम में से एक मेंबर को हमने एलिमिनेट करना है। हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक हमें जो यहाँ पे 2 लोग रह जाएंगे जिनके नंबर ज्यादा आए हैं, उनमें से एक तो इज़ा है अभी आप और में से दूसरे किसको लग रहा है कौन आउट होने वाला है? किसको लग रहा है किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या किसको लग रहा है वो आगे जाएगा? आपको लग रहा है आप आउट हो रहे हैं? लेकिन मोहम्मद अली तुम्हारे नंबर फिर भी जरा ज्यादा हैं। सिर्फ हमारी प्यारी बेटी रुबीना जो है वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगी और हम अगले सवाल इन दोनों के साथ करेंगे। आप तब तक वहां रहें, कुछ ना कुछ कंपनसेशन आपके लिए भी की जाएगी। सबसे पहले इज़ा, टाइम आउट है, यानी कि 50 सेकंड में जितने जल्दी जवाब दोगी उतने ज्यादा सवाल होंगे, उतने ज्यादा नंबर हासिल कर सकोगी और मोहम्मद अली से जीत सकोगी। वो वैसे भी हारा हुआ है, उसने पहले कहा मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो तुम समझो कि तुम जीत रही हो। जी इज़ा, शुरू करें आपका सवाल। कह सकती हूँ जो नहीं आएगा, जो नहीं आएगा पास के आगे पे चले जाएं, ठीक है कि ठीक नहीं? है। अब जल्दी करें हम लोग ताकि जल्दी जल्दी हम ये कर सकें। जी, ठीक। आपने हमें टाइम का बताना है, जो ही 50 सेकंड में मुझे बता दीजिए ताकि मैं सवाल अपने बंद कर दूं। ठीक है जी? द टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। ये बताइए, हजरत सुलेमान के साथ एक परिंदे की वाबस्तगी का बहुत जिक्र है जो उनका पैगाम भी लेके जाता था। बहुत उम्दा। ये बताइए, मलिका सबा का असल नाम क्या था? ये कुरानी के जी पास। नंबर 3 पे आप क्या साथ आते हैं? ये बताइए कि जमीन पर बर्फ की सबसे ज्यादा मिकदार कहां पाई जाती है? अंटार्कटिका। बहुत उम्दा। अब ये बताइए कि कोई ऐसा मुल्क जो कि लैंड लॉक्ड हो, यानी कि इसके पास कोई समुद्र ना हो, किसी एक का नाम बता दीजिए। ये पास। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, खुशबूदार लकड़ियों में से 2 का नाम बता दीजिए। पास। ये बताइए कि वो कौन सा दरख्त है जिसका तना खासा मोटा होता है, फलदार भी है, मगर उसमें लकड़ी नहीं होती? केला। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन सा मुल्क है जिसकी जबान गिनती की तरह लिखी जाती है, यानी कि ऊपर से? जी जापान। जापान, बिल्कुल, बहुत उम्दा। ये बताइए, इस वक्त
हुकूमत पाकिस्तान में वजीर दाखिला वफाकी हैसियत में कौन बराजमान है? पास। ओके जी, देखो आगे पास बढ़ते पास नहीं है, याद रखना ये। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तैयार है आप? पहला सवाल आपके लिए है कि कराची पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में? ओके जी, मैं क्योंकि ये मेरी गलती हो गई इसलिए कोई बात नहीं। अपनी गलती का नंबर मैं आपको देती हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? टेक्सटाइल। पंजाब का दरवाजा पाकिस्तान के किस शहर को? अटक, ठीक है, करेक्ट। मार्गला की पहाड़ियां किस पहाड़ी हिमालय। सिलसिले का? हाँ, हिमालय। करेक्ट। पाकिस्तान का आइन कब बना? 1973। किस मुल्क ने खला में पौधे उगाने की कोशिश की? खला में पौधे जापान। दुनिया का कौन सा मुल्क सतह समंदर से नीचे वाक़ है? सतह समंदर से नीचे नेदरलैंड, हॉलैंड। यहाँ रुक जाइए, अगर इजाजत दें तो कुछ फिलबदी सवाल होंगे। करें जी सर, जल्दी से करते हैं। बेटा ये बताइए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अलावा किसी भी ऐसी 2 खवातीन का नाम बताइए जो खातून थी और अपने मुल्क की वजीर आजम बनी। हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन वजीर आजम बनी अपने मुल्क की? खुल गई ना सारी गालें। हाँ जी बताइए, आता है सवाल इसका? बंदरा नायके का नाम सुना हुआ है? मार्गरेट थैचर का नाम सुना हुआ है? नहीं। नहीं सुना हुआ? अगला सवाल करूं? जी, जी। ठीक है बेटा, अब सुनिए, ये बताइए कि पाकिस्तान में वो कौन सा मकाम था जहां कायद आजम ने अपने आखिरी अय्याम ज़ियारत। ये बताइए कराची में। बजर हो गया? बजर हो गया जी, बजर हो गया। हो गया। रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस करने का टाइम आता है, लेकिन जरा सस्पेंस रखते हैं। पहले जरा शेफ उमा के पास चलते हैं। जी, बिल्कुल। और बल्कि मैं चाहती हूँ मैं तो जल्दी जाना चाहता हूँ, चलिए, चलना शुरू करें, मैं- क्योंकि मुझे लग रहा है कि हुमा बड़ी सब्र से, बड़ी देर से हमारे लिए चुका है, बड़ी आप मजे लोगों ने आने में देर कर दी। अभी तो हुमा, हमारी क्या बनाया आपने? जबरदस्त खूबसूरती दिख रही है हमें अच्छा बहुत जी, ज्यादा। आज जो भाई है जरा खाने का ब्यूटी शॉट लीजिए हुमा को छोड़ के, देखें कितनी मजे की चीजें हैं। हुमा, ये तो कोई बहुत अच्छा सा ग्रिल्ड चिकन है वाह, जो डाइटर्स बिल्कुल के लिए मोटे कमाल नहीं होंगे आप है। अगर आप ये खाएंगे। वो समोसा खाएंगे ना तो बस ईद पर ऐसे हो जाएंगे, कोई सूट फिट नहीं अच्छा आएगा। नबिया, इतने प्यारे मौसम में मुझे लग रहा है कि जो है ना रमजान है, इस वक्त सीजन में काफी फ्रूट्स हैं और आने वाले हैं। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक जो है 1-2 हफ्ते तक आम भी आ जाएगा और जी हाँ। उसके भी हम जरूर मशरूबात बनाएंगे। आज जो है मैंने ऑरेंज के साथ ड्रिंक बनाया, ऑरेंज मोहितो बनाया। और ये ऑरेंज की आपने जूस की जो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी की है, ये बताइएगा, ये सलीका जरा सिखाइएगा। बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी। अच्छा, बन नबिया, तो इसके बहुत अंदर- कुछ अच्छा जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, आपकी आंखें जो है वो पहले खाती हैं खाना और फिर आपका दिल करता है कि आप खाना खाएं। तो मैंने ऑरेंज के जो है स्लाइसेस कर लिए थे, ऑरेंज जूस ले लिया था, थोड़ा सा लेमन जूस उसके अंदर ऐड किया मैंने। साथ में जो पुदीने के पत्ते हैं वो ऐड किए हैं, क्रश्ड आइस डालनी है आपने जी, और ऑरेंज जूस लेना है और उसको जग के अंदर जो है स्लाइसेस और जो पत्ते हैं पुदीने के वो भी बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं अफ्तारी में। उसके साथ जो है डालने के बाद आपने सिर्फ जो है जूस इसके अंदर ऐड कर देना है और बहुत ही ईजी सा सिंपल सा जो है ये ड्रिंक हो गया अच्छा, हमारा। एक बात हुमा, आपको बताऊं जी, बताएं। मुझे लग रहा है हुमा को पता चल गया था कि उनकी होस्ट जो है वो डाइट करने वाली है, इसलिए हुमा ने जो सारी अफ्तार तैयार की है ना वो डाइट अफ्तार है। आप देख सकते हैं सीजर सैलेड जो है वो तैयार है और ग्रिल्ड चिकन, और उसके साथ क्या है? वेजिटेबल्स बस सोते किए मैंने। उसके साथ सैलेड जो है ग्रीक सैलेड मैंने बनाना था, लेकिन हुमा, मेरी जीती फैटा है। चीज जो है वो मिस हो जीती गई। रहे हैं, आपने सारा वो बंदोबस्त किया जिससे हम वेट लॉस की तरफ जाएं। बता तो दें कि भाई आपके ग्रीक सैलेड के अंदर या सीजर क्या-क्या सैलेड में है? क्या क्या है? अच्छा, मैंने- आइसबर्ग लेटस है, आइसबर्ग लेटस ब्लैक है, ऑलिव्स हैं, बिल्कुल कटे हुए टमाटर हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा खीरा है, और शायद कहीं कहीं कोई सॉसेज का एक पीस पड़ा हुआ था, चिकन सॉसेज नहीं, चिकन सॉसेज नहीं है इसके अंदर। मैंने इसके साथ फैटा चीज ऐड करनी थी। आप फैटा चीज ऐड कर सकते हैं साथ में, और ऑरिगेनो और जो है मैंने ऑलिव ऑयल के साथ, लेमन जूस के साथ और कोई इसकी sauce ड्रेसिंग भी बनाई इसमें है add सॉल्ट करेंगे, एंड पेपर dressing के खुद से साथ। बना सकते बिल्कुल, हैं। ड्रेसिंग में जो है मैंने ऑरिगेनो लिया था ऑलिव ऑयल के साथ, थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर, और उसको आपने That's बीट it. कर लेना है अच्छे कोई से। आपने मोटी बिल्कुल, वाली- उसके अलावा कोई मायोनीज कोई कुछ भी नहीं ऐड किया, और Okay. उसको आपने जो है वेजिटेबल्स के ऊपर जो है ड्रिजल करके उसको सर्व अच्छा, कर इसमें देना। मैं सिर्फ एक एडिशन करूंगा। ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन उनसे पूछिए जिन्होंने मेरे हाथ का खाया हुआ खाना। मैं गजब का उम्दा खाना पकाता हूं, अपने मुंह से तारीफ कर रहा हूं। ये जो तरीका है, बात सिर्फ ये है कि कोई भी आप जूस बनाएं उसमें फ्लेवर्स इन्फ्यूज कीजिए हर्ब्स के और राइंड के। राइंड कहते हैं उस छिलके को जो कि उस फल के नजदीक होता है। मैं अगर ये चीज बनाऊं तो इसके अंदर अपने हाथ से मोटा मोटा तोड़ के पुदीना डालूं, ताकि पुदीने के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जो मिंट ऑयल है, वो निकल के इन्फ्यूज हो आपके जूस के अंदर। मगर कोई बात नहीं, आधा नंबर तुम्हें भी मिल रहा है डालने का, आधा मुझे तरकीब बताने का। ख़वातीन हज़रात, एक बात आपको और बताऊं, मैंने हुमा के ऊपर थोड़ी सी तंज किया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं कहीं चिकन सॉसेज हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसमें फेटा चीज भी डालनी थी मगर नहीं डाली। बात यह है कि सीजर सैलेड मुकम्मल तब होता है जब बीच में बहुत उम्दा रोस्टेड चिकन की स्ट्रिप्स हो और साथ क्यूब्स हो लो सॉल्ट फेटा की।
پھر کسی ڈریسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں یہ سارے ساتھ الفاظ میں میں استعمال بھی. کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ پتہ لگے کہ اسلامی کوئز کے علاوہ مجھے یہاں پر بھی یہ اپنا کوئز جیسا چلنے پتا- والا میں ہے. اسی لیے کہہ دیا تھا کہ جی بس جو ہے وہ بچ چکا ہے, اب میرے سے کوئی سوال نہیں ہے. لیکن پھر بھی ابھی ریسیپی رہتی ہے جی چکن کی. چکن آپ گرل بھی کر سکتے ہیں, بیک کرنا چاہ رہے ہیں بیک کر لیں. چکن کی میرینیشن میں جلدی سے بتا دوں گی. میں نے مسٹرڈ لیا تھا, لیمن جوس لیا تھا, اس کے علاوہ سینمن پاؤڈر جو ہے اس کی خوشبو بہت ریفریشنگ لگتی ہے. سالٹ اینڈ پیپر کوئی بھی آپ کے پاس ہرب ہے, اگر پارسلے ہے تو وہ ضرور لگائیے تھوڑے سے دہی کے ساتھ. اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا, اور اس کے بعد اس کو گرل کر لیجئے. اگر آپ بیک کرنا چاہ رہے ہیں بیک کر لیں. ساتھ میں میرے پاس کیپسیکم تھی ڈفرینٹ کلرز کی, وہ میں نے جولین کاٹ لی, پیاز کاٹ لی, ٹماٹر کاٹ لیا, اور اس کو تھوڑا سا سوتے کر کے اولیو ساتھ میں ڈالیں جی, اور اس کو گارنش کر دیا. تو یہ بڑی ایزی سی سمپل سی ریسیپی ہے. آپ کوئی بھی سوس بھی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں, لیکن میں نے آج ذرا اس کو سمپل رکھا ہے کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے جی. ابھی ہم آئیں گے دوسری طرف بھی, ابھی تھوڑا ہاتھ تھولا رکھا ہے آج میں نے. کل سے کھانوں کی طرف ہم پڑھیں گے. ذرا نور کے پاس چلتے ہیں. نور کو بھی الوداع کریں. عمر تھینک یو, آپ نے اتنی زبردست افطار تیار کی ہمارے لیے, تو شکریہ آپ کا. یوں ہی افطار تیار کرتی رہیے گا. نور, کیا پیغام دینا چاہیں گی تمام دیکھنے والوں کو اس ٹرانسمیشن کے تھرو, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ پلیز یہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں 30 گنتی کے 30 روزے ہیں, اور اس کو ضرور رکھیں. ایک تو فرض ہے ہم پر, دوسرا اس میں مصلحت ہے. اللہ کی ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے. سو آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور رکھیں, اور 5 روزے کے ساتھ اپنے نماز ضرور پڑھنی ہے. میری بیٹی بھی اس وقت یہ شو دیکھ رہی ہے, اور ماشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ اس نے فجر کی نماز بھی پڑھی, آج ظہر کی بھی میرے ساتھ پڑھی ہے, پھر میں عصر پہ یہاں آ گئی. 5 وقت نماز کے ساتھ, شی از اونلی 8 ایئرز اولڈ. تو آپ جو کریں گے وہ بچے آپ کو دیکھیں گے. تو ضرور یہ مہینہ آپ کو نہیں پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ دعا مانگے گا کہ پورا سال رمضان ہو. سو روزے نہ چھوڑیں, روزہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. اتنا پیارا آپ نے, خوبصورت آپ نے پیغام دیا. میرے خیال سے اب وہ گھڑی ڈاکٹر صاحب آ چکی ہے جب یہ جو انعام ہے وہ کسی ایک خوش نصیب کو ملے گا. مگر پہلے آپ یہ بتائیں گی کہ آج وہ خوش نصیب کیوں ہے اور کیسے ہے, کیا اس نے ایلیمینیشن راؤنڈ کے بعد اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ راؤنڈ میں یہ پروف کیا کہ وہ کیا ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے؟ پچھلی بار بھی کہا تھا ہار گیا تھا, تو اس وقت جیت گیا تھا. بیچارے کو عادت پڑ گئی ہے. بتائیں جی, میں نے ڈاکٹر صاحب آپ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور میرے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جو میں نے دونوں بچے ذرا آ جائیں پہلے یہاں پہ, میرے پاس آ جائیں تھوڑا سا. ہاں, بات سے ہے کہ ازا نے سٹارٹ بہت اچھا لیا, لیکن پاس کرتی گئی, اور اتنا پاس کیا ازا کہ تم فیل ہو گئی. ہمارے آج کے تینوں کوئز راؤنڈ کے ونر بالآخر وہ ہیں جن کو اپنے آپ پہ یقین نہیں تھا. ان کا نام ہے محمد علی صاحب, اور ان کا تعلق ہے رائز کالج آف اکاؤنٹنسی سے. تو بھیا اکاؤنٹنٹ اچھے بننا, لیکن ہمیشہ نفع کی بات کرنا, تبھی نفع ہوگا. جو بندہ شروع میں گھاٹا کر لے اس نے آگے بڑھ کے کیا کام کرنا ہے. مگر ہماری بچی روبینہ نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا, سب نے بہت اچھا پرفارم کیا. ان چیزوں کے اندر کوئی ہار جیت نہیں ہوتی. یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کا, مزید اویئر کرنے کا. میری نظر میں تینوں بچے بہت ونر ہیں, لیکن میں بہت برا ہوں. جو ہی میں لگتا ہے مجھے کہ کوئی جیتنے لگا ہے, میں فوراً مشکل کر دیتے ہیں ٹاسک. جناب نیو ٹیلی ویژن کی طرف سے عمیر آپ کے لیے یہ انعام ہے, یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اپنی تشریف, بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات ہماری ایک چھوٹی سی بریک آ گئی ہے. یہ بریکس ہماری تھوڑی سی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن ان مجبوریوں کو فائدہ مت اٹھائیے گا. یہ نہیں کہ چینل سوئچ کر کے کہیں اور چلے جائیں. پلیز مہربانی سے ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں بھی حوصلہ رہے گا. ایک مختصر وقفہ اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے گا. قربان زمانہ ہے
جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن گھرانا ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محبوب یگانا ہے سبحان اللہ بہت خوب میرے بہت ہی پیارے بھائی نور سلطان صاحب نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا ٹرانسمیشن کو ڈاکٹر صاحب آگے لے کر بڑھیں گے میرا تو اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے رک جاؤں یہ سیگمنٹ ہے یہ میرے دل سے اس قدر قریب ہے اور یقین کیجئے کہ کچھ مہربان ایسے آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ دل کے رخسار پہ انہیں دست شفقت رکھ دیا ہے پھر اس کے بعد نور آپ کی یہ نعت میں واقعتاً کسی اور مقام پہ ہوں اور جس شخص کی وجہ سے ہوں وہ میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں میرے شفیق میرے رفیق میرے مہربان میرے رہبر میرے استاد جناب مفتی طاہر تبسم صاحب 7 سال پہلے ایک جگہ ایسے ہی ملاقات ہوئی 7 سال میں ہر روز محبت بڑھتی گئی ہر سال نہیں اور آج انہوں نے بتایا کہ ایک اور انہی کے ہمزاد انہی کی طرح کے شفیق آدمی تشریف لائے ہیں جن کا نام ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہے باجوہ صاحب ہم محبتیں نبھانے والے لوگ ہیں میرے نال بنا کے رکھو گے کہ بڑا فیض پاؤ گے انشاءاللہ کلام بھی ہم سنتے رہیں گے پروگرام میں تو کلام کے لیے ہمارے ویسے تو بہت سارے نعت خواہ تشریف لاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں لیکن قریشی صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رمضان میں سحر میں افطار میں شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اولڈ از گولڈ بالکل صحیح سر اور کمال ہے واقعی کمال ہے قریشی صاحب سر جی ایک بات میں اس وقت کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یہی وہ سیگمنٹ ہے جس سے شاید چند لوگوں کا بھلا ہو حضور والا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے
जैसे कि तुमसे पहले वालों पे फर्ज किए गए, और फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम्हें इत्तका की दौलत हासिल हो, सुभान तुम तकवा का हसूल कर सको। सर तकवा है क्या जो इस माह का हसूल है? हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पिया साहिबा, और यकीनन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ कंट्रोल रूम में तो मैंने आपको देखा, और फिर जिस तरह आप लेके चल रहे हैं ट्रांसमिशन को, वो पूरा माजी याद आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका कम्बिनेशन भी बहुत लाजवाब हो गया। और ख़ास बात यह है कि आप किसी भी लम्हे ट्रांसमिशन को या महफिल को सुस्ती की जानिब या बोरियत की जानिब नहीं जाने देते। जिस तरह तरोताज़ा रखते हैं, अल्लाह करीम आपको हमेशा तरोताज़ा रखे और इसी तरह जवान रखे। जो आपकी मोहब्बत है अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए, बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और रमज़ान के रोज़ों के हवाले से, और इसी को समझना ज़रूरी है, इसी पर फोकस करना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी इस पर बात करते रहें। लोग कह देते हैं ना जी ये वही पुरानी बात आ गई। ये पुरानी बात नहीं है, बात यही है कि जब तक आप उसकी रूह में नहीं उतरेंगे उस वक्त तक सुनने का कोई फायदा नहीं है। और जब आप दिलो जान से दीन की बात सुनेंगे, जिस तरह आप अभी कलाम सुन रहे थे, तो हर बार आपको नया लुत्फ मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी, नया जज्बा मिलेगा, नया सुरूर मिलेगा और नया अजर सवाब भी मिलेगा। अब माह रमजानुल मुबारक के जो रोजे हैं, इनकी फर्जियत का जो फलसफा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसी एक सेंटेंस में बयान फरमाया, जो इस आया करीमा का आखिरी जुमला है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, यानी समझने की बात यह है। अभी मैं वहां मेरी समातों से ये जुमला टकरा रहा था, यहाँ पता नहीं कौन कह रहा था कि अल्लाह को हमारी इबादतों की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। तो अब यहां भी समझना यह है कि अल्लाह हमें भूखा प्यासा रख के कोई खुश नहीं होता, ये उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने बंदों को तकलीफ में दे के राजी नहीं होता। तो आखिर उसने हमारे ऊपर जो रोजे फर्ज किए हैं, तो इसका कोई अल्टीमेट फायदा हमारे लिए है। और वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये रोजे मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हें तकवा की दौलत और तकवा की नेमत हासिल हो जाए। अब ये मुत्तकी परहेजगार भी कॉमन वर्ड है, लोग कहेंगे जी इसका क्या मतलब है। जो आप जो समझना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाहूंगी कि तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हो। ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है। जब ब्रेक तो हादसा हो जाता है, जरूरी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे खासकर मैं जानूंगी कि ये हमारे लिए सिर्फ जैसे कि अभी हमारे बड़े प्यारे जो हमारे स्कॉलर हैं उन्होंने बात की कि अल्लाह ताला का मकसद है बताने